Yes. Okay, great. Hmm. तो थोड़ा सा एक बार हम लोग आपको बता दे रहे हैं, जो भी वो 3 सेशंस हुए हैं उसमें हम लोग का एक सेशन जस्ट एक डेमो था, एक ओवरव्यू का था। तो अगर वो आप स्किप भी करोगे एकदम ओवरव्यू वाला तो चलेगा, कोई इतना वो नहीं था। हाँ, बट सेकंड सेशन जो अपना था वो था वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। तो हम एक थोड़ा सा आपको जस्ट एक ब्रीफ दे देते, एक ओवरव्यू आई एम सो सॉरी, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो ठीक है। हाँ, सो इन द फर्स्ट सेशन हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीखा था। अब व्हाट इज इन्फिनिटी फ्री उसके बारे में आपको हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि इन्फिनिटी फ्री इट्स एन डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म, नॉट अ डोमेन होस्टिंग, सब डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डोमेन परचेज करना है तो यू विल सेलेक्ट इधर GoDaddy, और आप होस्टिंगर, आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम दैट साइट। बट अगर आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको इफ यू ओनली वांट प्रैक्टिस कि आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप करनी है एंड हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हाउ टू पुट द कंटेंट ओनली फॉर द प्रैक्टिस प्रोस्पेक्टिव, तो इन्फिनिटी फ्री है आपका। इन्फिनिटी फ्री बेसिकली आपको वेस्ट डोमेन देता है जो कि गूगल से क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उन पे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आप बोल सकते हो इन्फिनिटी फीस द रेप्लिका ऑफ GoDaddy और यो होस्टिंगर। तो उसका क्या है, एक रेप्लिका है, एक मिरर प्लेटफॉर्म है। तो आज, हाँ, ये आपका फर्स्ट क्लास में था। हाँ, तो सेकंड क्लास में आपका था कि अपनी वेबसाइट जो होती है टेक्निकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, आपका हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो लास्ट Hello, सेशन में जो, hello, ma'am. Hello. हाँ, I, I want to tell something that is this first class of this course. no, Actually, actually, this is the this is fourth my class. This is the fourth class of this course. how this is my first class, and how can I get last 3 class? Uh, so, I admit have you talked today. to have you talked to some BD team so they can provided you the video of that previous classes? Mm, Have you talked or have you called? I There's any think contact person of yours? yeah. I contact with Gitanjali. So you can talk to Gitanjali and tell him she can provide you the previous 3 classes videos for I think so. I don't know the name of admin. Rashmi and rest persons also get the videos of the previous classes. So for the revision perspective, you can talk to Gitanjali. She will provide you the previous classes videos, and in case if you find any doubt regarding that lecture, so we will conduct one revision session, so I will clear all your doubts regarding that particular topics. Yeah, yeah. Thank you. Uh, Uh-huh. But I think that class will be better for me if that will be a live class. That would be so is there any old students, so that would be actually see, there are many new Is students there also, I think one two new three four, all new four are batch? new. Yeah, Is there new actually, batch? this batch is I think so 3 class old only. Oh, Okay, I already taken the 3 classes. So this is the fourth class. yeah, fourth class. Yeah, of WordPress. First is the overview session, then second is the WordPress installation, and this is the third class. I'm so sorry. This is the third class. So and the second would be आपका overview, आपका WordPress installation, and the third would be the header, the website का first section of the header part, and this is the fourth class. Yes, yes, yes. I'm right. This is the fourth class. Fourth class. Yes. Actually, ma'am, I think you understand that this is the tough for a student to Yes. uh,
jump one Okay, or two okay, okay, class. okay, 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 okay. Just give me 1 second now. So there is Jishan. This is the old student. Just give me 1 second. Jishan, am I audible to you? यस मैम। Okay, so Jishan, आपका कोई क्लास जैसा स्किप हुआ है क्या? कोई भी प्रीवियस क्लास? नो मैम। कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं हुई है ना? नहीं इंस्टॉ आपने इंस्टॉलेशन भी कर लिया है? मैम, किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इंस्टॉलेशन वाला क्या हम लोग सेशन को रिपीट कर ले, अगर आपको भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज वी हैव 4 स्टूडेंट्स न्यू, विशाल, देन आशुतोष, कृष एंड वन मोर न्यू गर्ल इज देयर। Karishma. I'm so sorry. I'm unable करिश to change my name. करिश्मा, Yes. करिश्मा ना? Yes. करिश्मा, ओके, गॉट इट। सो करिश्मा, मैम विशाल, आशुतोष एंड कृष, दे आर 4 न्यू स्टूडेंट्स। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग इंस्टॉलेशन वाला रिवीजन कर सकते हैं। जी हाँ मैम, मैम, कर wait. लीजिए लेकिन थोड़ा But I will फास्ट में already थोड़ा निकालिएगा। the third lecture I will do. I will go जस्ट through वन, all the videos and ओके, install also WordPress, ओके, यू ऑलरेडी इंस्टॉल द कृष। and I also make the website also. Same here. Yeah, step by step. 1 सेकेंड ना, मुझे विशाल, अगर सब एक ही पेज पे है ना तो विशाल एक आप थोड़ा सा 1 सेकेंड ना, हम 1 मिनट बात करते हैं सचिन से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, ma'am. विशाल, अभी ना सचिन सर आ रहे हैं, आपको एक बार ना वो समझा देंगे, बिकॉज हम उनका भी ये कहना है कि आप न्यू टॉपिक कर ले और रेस्ट का ना आपका वीडियो, तो एक बार वो आ रहे हैं, एक बार आप उनसे डिस्कस कर लीजिए ना प्लीज। ठीक है, रेस्ट करिश्मा, कृष, जिशान और अभी तो आशुतोष थे, अच्छा मोनिका एक और ऐड हुई है। Okay, ओके, ma'am. हाँ, जस्ट 2 मिनट्स ना, आई थिंक सचिन आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे उस चीज के लिए। Hmm. ओके, ठीक है, रेस्ट अगर किसी को कोई डाउट है जब तक वो नहीं आ रहे तब तक आप लोग भी पूछ सकते हो, तो हम लोग नहीं तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं उस चीज को लेकर। करिश्मा, आशुतोष, जिशान, कुछ भी Yes, ऐसा? ma'am. कुछ मुझे भी ऐसा? डाउट है हाँ, मैम। हाँ, बोलिए ना प्लीज। मैं ना वेबसाइट मैंने बना दी जैसे आपने बताया था ना हाँ, तक। उसके बाद में जो ये एलिमेंटर जो था और एक ग्लोबल करके ना जिसमें फॉन्ट वगैरह चेंज होता है जिसमें आपने बटन्स का करेक्ट, बनाया हुआ है, करेक्ट, हाँ, तो वो मैं जब चेंज कर रही हूँ ना मेरे एंड पे वो हो नहीं रहा था। एलिमेंटर अच्छा, में क्या जैसे आपका कैसे स्लो लोड हो रहा था, करेक्ट, करेक्ट, मेरे हाँ। इसमें भी सेम हो रहा था। तो मैंने इंटरनेट चेंज भी किया, स्विच किया, पर वो एलिमेंटर वाला पेज नहीं ओपन हो रहा था मेरे इसमें। आप एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे अगर आप लैपटॉप से हैं तो? हाँ, मैं हाँ, कर। तो आप स्क्रीन शेयर करिए, हम स्टॉप करते हैं, तो मानिए जब तक वो आ नहीं रहा तो हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। शिवांगिनी मैम। हाँ सचिन सर, प्लीज आप सॉरी मैम। विशाल का हाँ, एक बार आप, हाँ, विशाल, हरिओम सर will call you in some moment. Okay. Yeah. Yeah, yeah.
sir. Okay. And the rest of the student, ma'am, you may continue in न्यू टॉपिक ना? Someone called. ओके Hello. ओके। हाँ करिश्मा, आप स्क्रीन शेयर करिए। थैंक यू करूँ? सचिन। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई, विजिबल है। रेस्ट आशुतोष, क्रिश या फिर जिशान, मोनिका, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक। मैम मेरा वेबसाइट ओपन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन शेयर की जाती है। जस्ट मुझे एक सेकेंड दीजिए, ठीक है ना? पहले करिश्मा कर लेते हैं, फिर आप स्क्रीन शेयर करिएगा। हाँ करिश्मा, आप ग्लोबल का बोल रहे थे ना? हाँ मैम, मैं एक हाँ, सेकंड आप अनम्यूट रहिएगा। जी। हम्म। ओके मैम, जैसे अब मैं मेन्यूज पे गई, हम्म। नहीं सॉरी, ग्लोबल। हम्म। अब जैसे मुझे किसी चीज का मैम कलर चेंज करना है या बटन जो था नीचे। हम्म। 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 ओके। हम्म। हाँ ओके, अब ये ठीक हुआ है। है, मैं तब चेक कर रही थी ना, तब ये हो नहीं रहा था। और अगर मैम मुझे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं? वो हम आपको बताते हैं, बैकग्राउंड वाला ना ओके। आज के सेशन में आपको बताते हैं कि इसका अच्छा, हुआ बैकग्राउंड नहीं। कैसे चाहिए। हाँ, वो आज हम आपको बताएंगे उसमें। मे भी हो सकता है, देखिए ये इन्फिनिटी फ्री जो है ना करिश्मा, ये एक्चुअली बेसिकली अनऑथराइज प्लेटफॉर्म है। मतलब ये जी। गूगल में आज एच टी टी पी अपना HTTPS होता है ना, जो जी। सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, आप देख रहे वहाँ पे नॉन सिक्योर है, तो इसका लोडिंग टाइम हो सकता है कभी कभार ना हम्म। ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से शायद वो अपडेट नहीं हुआ होगा। ओके मैम, नो हाँ। वरीज। और फिर मैं ना एलिमेंटर जो देख रही थी, हम्म। एक सेकंड, मुझे ना एलिमेंटर में डाउट था। ऑल्दो हाँ। मेरे सारे हेडर्स दिख रहे हैं उसमें। हम्म। जैसे आपने एसईओ में क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा था, मैंने हाँ उसको शॉर्ट में लिखा है। हाँ 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 हाँ। तो वो मेरा दिख रहा है, पर मैं फिर भी वो एलिमेंटर ओपन करना चाह रही थी, पर वो एडिट विद एलिमेंटर ओपन नहीं हो रहा है मेरे एंड पे। अच्छा एक सेकेंड, ये अभी लोड हो रहा है ना। नहीं, मैंने एडिट। अपनी अपनी वेबसाइट एक बार आप ओपन करिए। एक न्यू टैब में ओपन करिए, यहाँ पे मत जाइए, एक न्यू टैब में वेबसाइट ओपन करिए आप अपना। ओके। अ, नहीं, ये भी नहीं है। आप ना ये कॉपी करिए URL करिश्मा, जो आप कस्ट शायद। जी जी। अच्छा, आपने वो किया है, बुकमार्क किया आपने, अच्छा काम ओके। किया है। हाँ, माई ब्लॉग पे जाइए उधर, राइट टॉप कॉर्नर में, और एकदम टॉप पे जाइए, एकदम टॉप पे। हाँ, राइट क्लिक करिए और न्यू टैब में ओपन कर दीजिए, ओपन इन न्यू टैब। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई परेशान मत होइए। अब एडिट विथ एलिमेंटर करिए वहां पे। हाँ, सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करिए। एक और चीज है, मतलब ये मुझे डाउट है आपका, आप पेज को एलिमेंटर में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको वो वाले में डाउट आ रहा है क्या? हाँ, मतलब जैसे अभी देखो, ये यहाँ पर यू क्या आ आर रहा है, यू आर प्रोबेबली प्रोबेबली ऑफलाइन। ऑफलाइन। हाँ, हम्म। बार बार मुझे ये पॉपअप दे रहा है। हालांकि मैं समझ गई आपने जो समझाया वो एलिमेंटर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, पर मैं चाह रही थी कि मैं इसको एक बार ओपन करूँ तो मेरे पास में भी मुझे समझ में आए। कोई बात ये नहीं। ओपन नहीं एक हो रहा है। इसको वेट करिए, ऐसा कोई वो इशू नहीं, या फिर एक बार रीलोड करिए। इसका लोडिंग टाइम एलिमेंट का आपके में नहीं, कभी मेरे में भी ये प्रॉब्लम दे देता है। रीलोड ओके। करके थोड़ा सा वेट करिए एक बार, तो हो सकता है प्रोबेबली। एक सेकेंड, हम भी अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके एक बार एलिमेंटो में स्विच करते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, होने दीजिए अभी उसको, मे बी इट विल टेक Ma'am, टाइम। I, हाँ हाँ, विशाल बोलिए। ma'am, I talk with the name of Russell. What the name of his? सच Sachin, सचिन। Sachin. Yeah, yeah. हाँ, I talked with him, and she said that this is our additional class. After this class, the SEO will be start. SEO class will be started. yes, 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 after WordPress the SEO will be started, yes. Uh,
Because Yeah, without yeah. website, I'm unable to explain you SEO practically. So that's Sure. why I'm starting with WordPress. Okay. Okay, Vishal. Then you just provide me the last classes. Yeah, yeah, yeah. I for sure I will provide you the last class video also. And in case अगर आपको कोई doubt होगा ना, तो हम लोग एक extra session रख लेंगे regarding this particular WordPress. Okay, thank you, ma'am. Okay, welcome. क्लिक ऑन अनेबल सेफ मोड पे करिए तो करिश्मा, अनेबल सेफ मोड। ना मुझे हाँ। इस पे करने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। मुझ ऑप्शंस कौन से दिख एक मिनट, वो इसको मैं म्यूट, मिनिमाइज और कर। उसका आप ड्रैग हाँ, करके उसको कहीं पे भी मैंने, शिफ्ट कर सकती हैं। ठीक है, हाँ। ओके, अभी रुक जाइएगा, होपफुली ये हो जाए। मैंने ये भी ट्राई कर लिया था पर उसमें भी नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे? इस पे आइए, अपने कस्टमाइज पे आइए। माई ब्लॉग वाला सेक्शन है ना आपका, हाँ। अगर इन केस यहाँ से नहीं हो रहा, हाँ, क्लोज करिए और पेजेस पे जाइएगा, पेजेस पे एंड ऑल पेजेस पे जाइएगा। ओके, कस्टमाइज पे जाओ ना। वेट, 1 सेकेंड, हाँ, क्रॉस करिए, रुक जाइएगा, हाँ, क्रॉस करिए एक बार। वहां पे वर्डप्रेस का डब्ल्यू है ना, हाँ, डब्ल्यू पे क्लिक करिए एंड माई ब्लॉग पे आइए, माई ब्लॉग, माई ब्लॉग, हाँ, बस बस बस, डन। पेजेस एंड ऑल पेजेस। 1 सेकेंड, करिश्मा, आप इसको अपडेट कर लो। वर्डप्रेस 6.8.2 है ना आपका, प्लीज अपडेट नाउ, वहां पे देखिए, हाँ, इसको अपडेट करिए, मे बी इसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, ठीक है, अपडेट टू वर्जन 6.8 हाँ, करेक्ट, हाँ, यहाँ पे आप आ जाओ। ठीक है, आपका अपडेट हो चुका है। अब फुल्ली पेज एक बार हो जाए लोड, तब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अपडेट वर्डप्रेस डेटाबेस, हाँ, क्लिक, कंटिन्यू। बिकॉज जो 6.8.1 वाला अपना था ना, उसमें काफी इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से। अब आप पेजेस पे जाओ, पेजेस एंड ऑल पेजेस, कमेंट, अब कमेंट, हाँ, पेजेस एंड ऑल पेजेस, हाँ। देन अबाउट लेट कंसिडर, भी किसी को भी ले लेते हैं, हाँ, कोई भी एक पेज पे आप यहाँ एडिट पे देखिए, क्लिक एडिट विथ करूँ। एलिमेंट, नहीं नहीं, एडिट विथ एलिमेंटर देखिए लिखा हुआ है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, हाँ, इस पे क्लिक करिए। नेक्स्ट करिए, क्लोज, ऊपर से क्लोज कर दीजिए, इतना आपको वो करेगा इरिटेट, इज सच अ क्लोज। यू आर प्रोबेबली ऑफलाइन, क्यों, लीव करिए इसको, लीव। डैशबोर्ड पे आइए वर्डप्रेस के अपने, जो कस्टमाइज वाले का आपका, और ओपन इन अ टैब, हाँ, क्लोज करिए और अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आइए। माई ब्लॉग पे क्लिक करिए, हाँ, वहां देखिए डैशबोर्ड लिखा है, हाँ। और आप एल प्लगइन्स पे जाइए एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, एलिमेंटर सेटिंग्स में जाइए, एलिमेंटर के, ये, हाँ। नहीं, वहां देखिए सेटिंग्स लिखा है ब्लू, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए। एलिमेंटर ए आई आपका है, लेट्स गो पे क्लिक, एलिमेंटर ए आई है ना वहां पे करिश्मा, लेट्स गो, हम्म, हाँ, यहाँ क्लिक करिए एक बार। गेट स्टार्टेड, हाँ। इन केस अगर ये तब भी नहीं होगा ना, हम लोग प्लगइन को डीएक्टिवेट और डिलीट करके फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, बट ये लास्ट है, अगर इसमें भी नहीं हुआ, ओके, एलिमेंटर को हम लोग री इंस्टॉल कर लेंगे। नहीं, अकाउंट मत बनाइए, वो बहुत आपका ट्रिकी कर देगा उसको।
आइए अपने एलिमेंटर के उस पे, इसको क्लोज कर दीजिए इस वाले टैब को। हाँ, क्लोज करके आप इस पे जाओ, प्लगइन्स पे जाओ एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओ। लेफ्ट हैंड साइड पे ही अपने प्लगइन्स एंड इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, बॉटम में आपको मिलेगा। हाँ, हाँ, इंस्टॉल प्लगइन्स। और वहां पे जहाँ सेटिंग्स के साइड में आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, आप डीएक्टिवेट एंड डिलीट कर दीजिए इसको। हाँ, डीएक्टिवेट एंड डिलीट, सबमिट एंड डिलीट। कोई ना, ठीक है। डिलीट करिए, वहां पे देखिए एलिमेंटर के साइड में, वहां पे देखिए वापस से डिलीट कर दीजिए इसको, ऑफिशियली डिलीट कर दीजिए। मैम कोई कुछ कह रहा था क्या अभी? नहीं हो सकता है। फिर मैम ऐड। I say that हाँ, this is the free website or demo website. दिस इज द डेमो वेबसाइट, और मतलब द डोमेन और सब डोमेन इज फ्री, दिस इज अ डमी वेबसाइट। Dummy website. Yeah, yeah. या ऐड प्लगइन्स पे क्लिक करिए करिश्मा, अंडर द इंस्टॉल्ड। हाँ, सर्च करिए स्टार्टर टेम्पलेट्स, सर्च स्टार्टर, STARTER, स्टार्टर टेम्पलेट्स। हाँ, हिट एंटर। देन ये जो फर्स्ट वाला है ना आपका, ये ऑलरेडी एक्टिवेट है आपका। स्टार्टर टेम्पलेट्स ऑलरेडी आपके में। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाइए करिश्मा, एक बार वापस से आप प्लीज। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। अपर में अगर आप देख रहे होगे करिश्मा, वहां पे इंस्टॉल एलिमेंटर लिखा हुआ है ना। हाँ, हाँ, इस पे क्लिक करिए, इंस्टॉल एलिमेंटर पे। एक्टिवेट प्लगइन। ठीक है, अब अपनी साइट पे जाइए, न्यू टैब में या कहीं पे भी अपनी साइट पे जाइए, क्लोज कर दीजिए। ये जो टैब ओपन नहीं हो रहे हैं इनको क्लोज कर दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। हाँ, अपनी अब वेबसाइट पे आइए। हाँ, माई। माय ब्लॉग। हाँ, और अब एक बार देखिएगा। एडिट विथ हाँ एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, एडिट विथ एलिमेंटर। ओके। डन हो गया। वो एक्चुअली में क्या है ना, कुछ मैंने भी इतना नहीं किया है, बट हाँ वो कभी कभार ना ग्लिच आ जाता होगा, सो इस ओके। वजह से वो ऐसा हुआ है। ठीक है, ओके। ओके, मैं स्टॉप कोई शेयरिंग। प्रॉब्लम नहीं ना करिश्मा? नहीं, अंडरस्टूड ओके मैम। ओके, ठीक है, थैंक चलिए। यू। वेलकम। ठीक है, आते हैं अब हम लोग आज के सेशन पे। सो ठीक है, देखिए आज का सेशन वैसे इजी है, इतना कोई हेक्टिक नहीं है, बट हाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो देखिए, ये वेबसाइट है अपनी। ठीक है, इस वेबसाइट में टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सारी चीजें जितनी भी आप पोर्शंस क्रिएट करोगे, चाहे आप यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो, चाहे आप यहाँ पे अपना हेडिंग पुट कर रहे हो, इधर आप कोई पोर्शंस यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें ये एलिमेंटर का ही यूज करके बनी है। सी, एलिमेंटर क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग को कोडिंग नहीं आती है। हम लोग को CSS नहीं आता डिजाइनिंग के लिए, हम लोग को जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, हम लोग को PHP नहीं आता, इसलिए हम लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, वर्डप्रेस का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें ना, इंडस्ट्री में मोस्टली 99% ना कोडिंग बेस्ड वेबसाइट है, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा नहीं डिजिटल मार्केटर है तो वर्डप्रेस की हम बहुत तारीफ करेंगे, बट नहीं, इंडस्ट्री में टेक्निकली
कोडिंग वाली ही वेबसाइट को ज्यादा क्या किया गया है, प्रायोरिटी दी गई है। अगर अपने वर्डप्रेस को भी देखें, अपनी वर्डप्रेस जो है, ये जो एप्लीकेशन है ना, टेक्निकली ये भी पीएचपी, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इन्हीं पे क्या है, बेस्ड पे है आपका। तो हम लोग को एसईओ सीखना है। एसईओ कॉमन होता है, इधर वर्डप्रेस साइट हो या फिर आपकी कोडिंग वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वुड बी कॉमन, ठीक है, चाहे वो कैसी भी साइट हो आपकी, ठीक है। सॉरी, एसईओ वुड बी कॉमन आपकी रहेगी। अब एलिमेंटर जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, और एलिमेंटर आप बोल सकते हो काइंड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप वाली थिंग होती है। आपको बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसी वेबसाइट हम लोगों को बिल्डअप करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एलिमेंटर यूज कर सकते हो। एलिमेंटर में प्रो वर्जन भी है, फ्री वाले भी। प्रो में थोड़े और आपको एडवांस एलिमेंट्स मिल जाते हैं, फ्री वाले में आपको बेसिक मिलते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप फ्री से नहीं सीख सकते हो। अगर आप फ्री भी सीख जाओगे तो प्रो वाले में आप और अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए, ये एलिमेंटर जितना भी अभी ये पेज है ना, अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं, और फिर हम आपको एक बिल्कुल बेसिक बेसिक मतलब कि जहाँ पे जीरो कंटेंट वाला जो पेज होगा, हम उस पे आपको एक बेसिक वेबसाइट डिजाइन करना सिखाएंगे। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कंटेंट पुट कर सकते हो। हाँ, एक और चीज, अब देखिए, आप लोग चैट जीपीटी तो यूज करते ही होगे। चैट जीपीटी बिकॉज कॉमन है, उसके एप्लीकेशंस आ चुके हैं। साइड बाय साइड ना आप लोग कुछ टूल्स भी यूज करो, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में भी ना टूल्स आपके आ रहे हैं। तो एक तो आपका चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग के लिए आपको बता रहे हैं। अब एक और चीज है, चैट जीपीटी अगर आप यूज कर रहे हैं डजेंट मीन दैट कि आप उसके कंटेंट को कॉपी करके अपने वेबसाइट में लिख दो। प्लीज डोंट डू दिस। आप उससे आइडिया लो, उससे कंटेंट के कुछ वर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हो रीड कैसे कर रहा है, या फिर किस तरह का वो कीवर्ड्स यूज कर रहा है, आप आइडिया लो और खुद से अपने कंटेंट को रेडी करो। चैट जीपीटी इसके लिए है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि आप वहां से कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल दोगे और वो आपकी रैंकिंग में हेल्प करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, आप चैट जीपीटी का यूज किसके लिए कर सकते हो, कंटेंट रीडिंग के लिए कर सकते हो, कंटेंट आइडियाज के लिए कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स के लिए कर सकते हो। इनका यूज आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। चैट जीपीटी ही नहीं, चाहे वो गूगल जेमिनाई हो, ठीक है, चाहे वो आपका परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो आपका क्लॉड हो, ठीक है, तो कुछ भी हो, ये सारे आपके कंटेंट राइटिंग टूल्स हैं, ठीक है। परप्लेक्सिटी तो आपका पेड आ जाता है तो उसका यूज करने का कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, गूगल जेमिनाई भी अच्छा है, क्लॉड भी अच्छा है, और आपका चैट जीपीटी भी अच्छा है, तो आप इनका यूज कर सकते हो कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और क्रिएट करने के लिए, या फिर आइडिया को लेने के लिए। अब बात ये आती है, जब आप कंटेंट लिखते हैं अपने वेबसाइट में ना, तो कितने पोर्शन कॉपीड होने चाहिए, कितने पोर्शन आपके और यूनिक होने चाहिए। तो यूनिक जो आपका है वो ऑलमोस्ट आपका कितना होना चाहिए, यूनिक 80%। 80% डेटा आपका यूनिक होना चाहिए, और अगर आप कॉपीड की अगर बात करते हो, रेस्ट 20% आप कॉपीड ले सकते हो, ठीक है। वॉइस इशू आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? 1 सेकेंड, जैक का इशू। आपकी ऑडिबल है क्या जो? करिश्मा, पहले आशुतोष, बेटर था। पहले बेट अभी हाँ, अब ठीक है। ठीक है ना? हाँ। सो जो कंटेंट है आपका 80% शुड बी यूनिक। 20% तो देखिए वो वर्ड्स का भी हो सकता है। अब कुछ कीवर्ड ही ऐसे हैं कि आपको यूज करने पड़ रहे हैं, तो आप 20% का कुछ नहीं कर सकते। बट ट्राई करिए कि आपकी 80% कंटेंट क्या हो, यूनिक हो, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट पे। सो एक होम पेज के बारे में रिगार्डिंग हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सो आते हैं, ये अपना होम पेज है यहाँ पे, ठीक है, इसको साइड में करते हैं। सी, एलिमेंटर पे क्लिक किया था हम लोगों ने, तो हमारा ये वाला पेज क्या हुआ था, ओपन हो गया था। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपकी वेबसाइट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, और एसईओ किस लिए सीखते हैं, क्योंकि वेबसाइट को ग्रो कर सके, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैपटॉप पे हो गया, या डेस्कटॉप हो गया, या टैबलेट हो गया, या फिर फोन हो गया, आपकी वेबसाइट कैसे अपनी विजिबिलिटी क्या करेगी, शो करेगी। सी,
आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जब भी आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो, कुछ रिड्यूस कर रहे हो, कुछ इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, तो आप इसको भी क्या करो, पैरेलली यूज करो। इन केस आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बट अगर कोई सेल फोन पे जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स थोड़ा उनको कट होके दिखाई दे रहा है या फिर कैसे भी उनको शो हो रहा है, तो ये एक ऑथेंटिक वे नहीं होता है वेबसाइट क्रिएट करने का। ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग कि हम लोग अपने एकदम ब्लैंक पेज पे अगर आए, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस जगह पे, तो ये आपका, अगर आप इस सेक्शन पे देखो, ये आपका एलिमेंट्स है, ये वाला सेक्शन। ठीक है। इसमें कुछ आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ से भी एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हो। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये कुछ आपको फ्री दिए हैं, कुछ आपके प्रो आ गए हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है और आपको इन सब का यूज करना है, गैलरीज का एंड फर्दर चीजों का, तो आप कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। सेम प्रोसीजर है आपका। अब बात ये आती है कि कैसे यूज करना है, ये बैकग्राउंड में पिक्चर्स कैसे होते हैं, इस पे टेंट्स कैसे पड़े होते हैं, या फिर ये अपने जो किस पोर्शन में हेडिंग लेना है, कितना अपनी वेबसाइट में किसी कंटेंट के बीच में गैप्स आने चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप कहीं पे भी क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक पेंसिल का साइन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको चेंजेस यहाँ पे अपनी शो होंगी। तो एक बार ऑब्जर्व करिएगा आप। सी, अब हम लोग बेसिक एलिमेंट्स में है, यहाँ पे हम लोग ने पेंसिल पे क्लिक किया, आप कौन से सेक्शन में आ गए, एडिट, एडिट हेडिंग सेक्शन में। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वापस से इस वाले सेक्शंस में आ गए जहां पे आपका कंटेंट गिवन है, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपका क्या है, कंटेंट सेक्शन है। कंटेंट हमेशा टेक्स्ट एडिटर के अंदर में ही लिखना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है, अगर आपको एंकर टेक्स्ट देना है, एंकर टेक्स्ट में अगर आपको हाइपर लिंक देनी है, आपको रीडायरेक्शन करवाना है किसी पेजेस पे, तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ आपका कंटेंट में या फिर इधर आपके बटन्स में। बटन्स मतलब ये आपका नहीं, आइकन लिस्ट है ये आपकी, ये बटन नहीं है, ये है आपका बटन। ठीक है। तो सी, आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। तो एक बार हम आपको पूरा ब्लैंक पेज से स्टार्ट करके दिखाते हैं कि अगर क्योंकि एडिटेड पेज को एडिट करना इट्स मच इजियर, ब्लैंक पेज पे काम कैसे चलता है उसके बारे में बात करते हैं। सो वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं, होपफुली आपका एलिमेंटर में हो कन्वर्टेड, नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज है। हाँ। तो ये अभी वर्डप्रेस वाला अपना है, अगर आप लिंक भी देख रहे हो यहाँ पे, ये वर्डप्रेस की है, और हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में जाते हैं। ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी आपको गिवन नहीं है इस जगह पे। लीव। हाँ। अब देखिए, आपको जो यूज करना है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी या कुछ पेजेस को बिल्डअप करना सीखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो, अपने को यूज ना इसका करना है। ठीक है। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स, अगर आपको थीम चेंज करनी है, या फिर अगर आपको कुछ विजेट्स चाहिए, या फिर अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इनमें से ऐड ऑन कुछ भी करना है अपार्ट फ्रॉम वो, तो आप इसमें यूज कर सकते हो कि आपको कोई एक टेम्पलेट डाउनलोड करनी है या कुछ भी है, वो उसके लिए है। बट हाँ, हम लोग पेज क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो पेज क्रिएशन के लिए हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। प्लस साइन ही हमारा क्या करेगा, सारा काम करेगा यहाँ पे। तो प्लस साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका एक फ्लेक्स बॉक्स है एंड ग्रिड है। टेक्निकली ग्रिड आप तब ले सकते हो जब आप किसी पोर्शंस में किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ गैलरीज बनानी है, या फिर आपको कुछ वीडियोस पुट करनी है, या फिर आप इमेज प्लस कंटेंट पुट करना चाहते हो, तब आप ग्रिड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। वैसे बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, फ्लेक्स बॉक्स जो आपका है वो बेसिकली स्ट्रक्चर बताता है कि अगर आपका किसी भी पोर्शन में कैसा स्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना है। फॉर एग्जांपल, एक पोर्शन में आपको ब्लैंक चाहिए, एक पोर्शन में आपको 4 का डिवीजन चाहिए, एक मतलब इस स्ट्रक्चर में आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। एंड ग्रिड्स मोस्टली तब यूज करते हैं जब आपको कुछ गैलरीज या वीडियोज या कुछ भी उस तरह के फंक्शंस का यूज करना है, बट इतना भी ह्यूज डिफरेंस नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग अभी फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, इन केस अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप लोग ध्यान देना। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे क्लिक किया है प्लस साइन पे, देन फ्लेक्स बॉक्स पे, देन ये फर्स्ट पोर्शन पे। अभी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने होम पेज पे मेरे देखा कि पीछे कुछ वर्किंग एंड टेंट्स और इस तरह के बैकग्राउंड्स ये पुट है ना, इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। सी, ये आपका एक पोर्शन क्या हो चुका है, बिल्डअप हो चुका है ये। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे, सो क्लोज कर रहे हैं, पूरा ब्लैंक है आपका। प्लस साइन पे गए, फ्लेक्स बॉक्स पे गए, फर्स्ट लिंक पे गए, आपका यहाँ पे एक पोर्शन बिल्डअप हो चुका है। अब मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए कुछ पिक्चर्स विथ टेंट्स। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे 6 डॉट्स विजिबल होंगे, ये 6 डॉट्स, ठीक है, इस 6 डॉट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए, एडिट कंटेनर पे। एक बार ऑब्जर्व करिएगा, अभी हम लोग बेसिक एलिमेंट्स में है जहां से आप चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट वी वांट कि हम लोग का पीछे क्या आए, कंटेंट आए, सॉरी इमेज आए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो 6 डॉट्स है इस पे क्लिक करना होगा। तो आप क्या चले गए, एडिट कंटेनर पे चले गए। ठीक है, अब एडिट कंटेनर के बाद हम लोग आते हैं स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल में जब आप आएंगे तो यहां देखिए आपको बैकग्राउंड टाइप्स दिख रहे हैं। ठीक है, पिक्चर है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मींस मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, मिक्सचर ऑफ टू कलर्स आप बोल सकते हो। देन वीडियो हो गया और स्लाइड शो हो गया। तो ये आपकी बैकग्राउंड है, ये 4 टाइप्स में ही आपको क्या मिलेंगी, बैकग्राउंड्स मिलेंगी। तो इनके बारे में बात करते हैं। सी, तो एक सेकेंड, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, उधर तो हम पुट करेंगे बट यहाँ से शो करते हैं आपको, क्योंकि उधर कंटेंट जब पुट करेंगे ना तो वो फिर वैसे लेंथ इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट है तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने को। और यहाँ पे हम यूट्यूब एक सेकेंड ओपन कर दें। हाँ, ये क्लासिक पे गए, ये फर्स्ट वाला अपना पोर्शन है क्लासिक, जिसमें आप वन सिंगल पिक्चर आप पुट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग इमेज पे गए। आप कैनवा का यूज करके भी अपनी पिक्चर को बिल्डअप कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ से भी, अभी हम यहीं से पिक्चर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सो मानिए ये पिक्चर है, ठीक है, एंड सेलेक्ट। तो ये आपकी पिक्चर क्या होगी, अभी ये आपको विजिबिलिटी शो इसलिए नहीं करेगी बिकॉज हम लोग का कंटेंट इसमें पुट नहीं है। जब कंटेंट पुट होगा तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हम शो करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड ना, आप लोग को जस्ट इमेज शो करने के लिए ना, अभी हम इसमें बाद में इन सबको डिलीट कर देंगे। अम, ठीक है, हाँ, अभी हम इसको रखे हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई, ये पहला सेक्शन आ गया अपना। ठीक है, सेकेंड आपका आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे हम लोग आते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे ही फोकस करिएगा। फर्स्ट हमारा इमेज था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दिया। सेकंड हमारा क्या है, ग्रेडियंट है, तो अभी हम लोग ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। तो ग्रेडियंट पे क्लिक किया, सो सी, यहाँ पे सेकंड कलर गिवन है, और हम लोगों को फर्स्ट कलर भी लेना है। तो अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, और थोड़ा सा लाइट वैसा ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे विजिबल होगा तो सी, मिक्सचर ऑफ टू कलर्स आपका आ रहा है।
आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे पिंक है, ये आप इनका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लोकेशन गिवन है इस जगह पे, ठीक है, तो आप इनका यूज भी कर सकते हो। आप चाहो तो सेकंड कलर को लेस कर दो और येलो कलर को आप इंक्रीज कर दो। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको 50-50 करना है तो आप रिमूव कर दो, यहाँ पे 50 यहाँ पे भी पुट कर दो और 50 यहाँ पे भी। तो ये देखिए आपको 50-50 कुछ इस तरह से दिखाई देगा कलर। अगर आपको कुछ मिक्सचर चाहिए वैसा, तो आप इसको 0 वैसे ही कर दो, इसको 100 कर दो। तो सी, ये थोड़े से आपको शेडेड्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको टाइप्स में चेंज करना है तो ये लीनियर है, आप इसको रेडियल, तो मतलब वो सर्कल्स में आ जाएंगे, सी ये सर्कल्स में आ जाएंगे आपके। तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट, द मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, ठीक है। देन आपका आता है वीडियो। आप वीडियो पे जाओ, वीडियो के लिए हम लोग को यहाँ पे लिंक चाहिए होगी। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्राई का वीडियो लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा शॉर्ट है, इस वजह से वो इजी रहेगा। ये 20 सेकेंड्स की वीडियो है, इसको ले लेते हैं। पॉज। अगर आपको भी वीडियो डालनी है तो आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उसकी लिंक क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है। सो हाँ, ये वीडियो आ गई आपकी बैकग्राउंड में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में आपको मल्टीपल पिक्चर्स सेलेक्ट करनी होती हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, 1 2 3 4 5। क्रिएट अ न्यू गैलरी, इंसर्ट द गैलरी, और ये आपकी स्लाइड शो हो गई। टाइम यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये एक फिक्स है, मतलब एक आइडियल टाइम स्लाइड शो की टाइमिंग है। बट ये आप अपने से अप डाउन कैसा भी चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स थे। इसमें कोई डाउट या कोई भी इशू जो समझ में ना आया हो, हम उसको रिपीट कर सकते हैं। करिश्मा, क्रिश, जिशान, विशाल, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है। सेकंड, इस पे हम टिंट बता देते हैं। टिंट मींस क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे हल्का सा टिंटेड इस पिक्चर पे पुट है, तो वो कैसे ला सकते हो आप लोग भी, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये अपना स्लाइड शो आ गया, इसको हम लोग कर देते हैं 0। अब देखिए, बिकॉज 2 कलर्स रहेंगे तो अपने को इशू क्रिएट करेंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ पे अपनी पिक्चर पुट कर देते हैं ना, सी पिक्चर कैसे पुट किया, बैकग्राउंड टाइप में फर्स्ट वाला अपना क्लासिक को सेलेक्ट करके, इसके बाद नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो इसके नीचे ही जस्ट आपको बैकग्राउंड ओवरले, आप यहाँ पे क्लिक करो, और ये जो आपका बैकग्राउंड ओवरले है क्लासिक पे क्लिक करो। पिक्चर अपलोड नहीं करना है, बट यहाँ के बैकग्राउंड ओवरले पे क्या करना है, हम लोगों को कलर सेलेक्ट करना है। सी, अगर इसको हम लोग कहीं भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये टिंट आ गया इसके ऊपर। आप फेड करना है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और इसको फेड करते हैं, सी ये क्या हो रहा है, फेड हो रहा है आपका। आप अपने अकॉर्डिंगली और वो ले सकते हो। समझ में आया कि इस पे टिंट किसी भी पिक्चर पे, ये ऐसा नहीं पिक्चर का है, आप इस पे और भी कलर्स का यूज कर सकते हो इन्हीं पे। सी, आप जैसा भी चाहो आप वैसा टिंट यहाँ पे ला सकते हो। ये भी क्लियर है ना कि बैकग्राउंड पे कैसे हम लोग को पिक्चर्स पुट करनी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अगर आप लोग चाहो तो खुद भी प्रैक्टिकल करके बता सकते हो। मैम वो बैकग्राउंड की इमेज
वाइड कैसे किया आपने? मीन्स पहले तो हाफ ही आ रही थी। अच्छा, वो एक्चुअली मैंने ना इसमें स्पेसर ऐड कर दिया था। ये जो है ना, ये मैंने स्पेसर यहाँ पे ऐड किया। ये जो आप बॉक्स देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आ रहा है सामने, तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, अगर आप प्लेस करोगे तो ये पिक्चर ऐसे, तो मैंने स्पेसर कर दिया आप लोग को, क्योंकि मेरा ये वाला पेज ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसर ऐड कर दिया। ओके मैम। ठीक है। तो ये अगर आप लेस करोगे तो देखिए ये वापस बैक टू पवेलियन हो गई है। आप इंक्रीज करोगे तो ये आपकी पिक्चर एनलार्ज हो जा रही है। तो मैंने आपको शो करने के लिए स्पेसर कर दिया इसमें। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ बैकग्राउंड का। तो अब हम लोग इसको करते हैं डिलीट, बिकॉज हम लोग को कंटेंट पुट करना है अपने अकॉर्डिंगली। तो डिलीट, बैकग्राउंड को हम स्किप कर रहे हैं, मतलब अभी रख रहे हैं उसको, डिलीट नहीं कर रहे बैकग्राउंड को। अब इसके अंदर हम लोग कंटेंट के लिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे, और जो ये प्लस साइन है ना, सी प्लस साइन यहाँ पे, इस पे हम लोग कर देंगे ड्रॉप। अब आपको जितना भी स्पेस चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उसको एनलार्ज कर सकते हो। देन हेडिंग है, देन ये ठीक है। हाँ, हेडिंग को ड्रैग किया, अभी जस्ट यहाँ पे ड्रॉप। देन हम लोग वापस से प्लस साइन पे जाएंगे, अपना टेक्स्ट एडिटर ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे अम, हम एक डमी साइट बस ले ले रहे हैं यहाँ पे, लॉरेम इप्सम करके। वेस्ट, वेस्ट कंटेंट है ये, तो इसको पुट करें। लेट कंसिडर, ये मेरा हेडिंग हो चुका है, इसको मैंने किया कॉपी, और हेडिंग में गए, यहाँ पे मैंने रिमूव किया इसको और किया इसको पेस्ट। ठीक है। फिर कंटेंट पे क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ पर गए और एक कंटेंट यहाँ से हम लोगों ने, सॉरी, कॉपी, कंट्रोल वी। ठीक है। अब ये देखिए विजिबिलिटी शो नहीं कर रही है ना, हम लोग को यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है ना नीचे हम लोग को कुछ दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस अपने हेडिंग वाले सेक्शन में जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपने स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में आपको यहाँ पे टेक्स्ट कलर बॉटम में दिखाई देगा, आप इस टेक्स्ट कलर पे क्लिक करें। आप चाहो तो इसको पूरा हम लोग व्हाइट ले लेते हैं, आप और भी कलर ले सकते हो, आप रेड ले सकते हो, जो भी आपका है। हम विजिबिलिटी के लिए इसको व्हाइट ले लेते हैं। देन वापस हम लोग कंटेंट पे आते हैं, देन हम लोग स्टाइल पे आते हैं। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट कलर पे आते हैं, एंड इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। ठीक है। आप टाइपोग्राफी भी इधर गिवन है आपको, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा साइज इसका रखना है, एनलार्ज करना है, या मतलब जो भी आपको है, ट्रांसफॉर्म कैसा चाहिए, किस तरह में चाहिए, आप उस तरह से ये आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो स्टाइल में आपको पर्टिकुलर थिंग की बेसिक सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। इन केस अगर आपको ग्लोबल में नहीं जाना तो आप पर्टिकुलर सेक्शंस के भी चीजों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटेंट का। आपका अलाइनमेंट आप देख सकते हो, आपको कैसा अलाइनमेंट चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसा कंटेंट पुट करना चाहते हो इस जगह पे। ठीक है। इसके बाद मानिए हम लोग बटन लिया, देन यहाँ पे पुट, सी बटन का भी कलर चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर, क्योंकि हम लोगों को दिख नहीं रहा है बटन का कलर, तो ये आपका टेक्स्ट कलर हो गया। ठीक है। ये आपका हो गया। तो अब एक और चीज देखिएगा, ये जो आपका टेक्स्ट कलर है ना, आप इसको कहीं पे भी स्विच कर सकते हो। सी यहाँ पे अलाइनमेंट्स आपको गिवन है, पोजीशंस कहाँ पे पुट करना है। ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है आपकी, गिवन है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा अपना साइट को फ्रेम करना है इसको। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक और चीज है बटन पे, ये बटन आपका नॉन क्लिकेबल है,
ये बटन आपका क्या है, नॉन क्लिकेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैश है। जिस भी लिंक या बटन्स पे चीजें अगर आप हैश से पुट कर देते हैं ना, वो आपकी नॉन क्लिकेबल में कन्वर्ट हो जाती। मतलब आप उस पे कितनी बार भी क्लिक करोगे बट आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको कहीं पे इसको मूव कराना है, क्लिक कराना है, तो इसको रिमूव करके आपको यहाँ पे यूआरएल पुट करना पड़ेगा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट हाँ, अभी आपका ये जो पोर्शन है वो क्या है, आपका आपका नॉन क्लिकेबल है। इतना पोर्शन समझ में आया कि कैसे क्रिएट किया गया है? मतलब अगर आप लोग को इजी लगा हो तो। एक और चीज, कैसा दिख रहा है वहां की भी बात हम लोग करते हैं। इसको पहले पब्लिश करते हैं हम लोग, और कॉपी पेस्ट एंटर। अब देखिए, वर्डप्रेस सी, अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है जो आपने यहाँ पे बिल्डअप किया है। अगर आपको ये थोड़ा सा और बैकग्राउंड वैसा करना है, ब्लैक या शेडेड, अगेन आपको वही फॉलो करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जाओ और बैकग्राउंड ओवरले पे जाओ। हाँ, यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे पूरा ही कर देते हैं। ठीक है? अब इसको पब्लिश करते हैं। जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे ना, तो विजिबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे पब्लिश होना और वहां पे पेज का रीलोड होना दोनों मैंडेटरी है। यहां से भी आप व्यू कर सकते हो, इस जगह से भी। सी, पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे अभी तो ऐड ऑन हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को। अब आपको चेंजेस यहाँ पे शोन होंगे। सी, यहाँ पे जो था ये आपका यहाँ पे शोन हुआ। यहां तक समझ में आया ना आप सबको? करिश्मा, विशाल, क्रिश? Yeah, ma'am, ओके, understand. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। कहीं पे भी लगेगा ओवर हो रहा होगा ना, तो आप मुझे वहां पे इंटरप्ट कर देना, क्योंकि उतना ही समझिएगा जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सको। अब देखिए, हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं, एक मार्जिन लेकर चलते हैं। मार्जिन मीन्स एक स्पेस लेकर चलते हैं, और वो स्पेस कांस्टेंट रहता है हर एक सेक्शन, हर एक पोर्शंस के लिए। तो लेट कंसिडर, यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, बॉक्स लिया, इसमें स्पेसर ऐड किया, बिकॉज अब हम दूसरा स्टेप इसमें ऐड कर रहे हैं। स्पेसर, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका मार्जिन हम लोग लेकर चलते हैं दोनों के, उसका 70, सॉरी 70। 70 कम है बहुत ज्यादा। एक सेकेंड, लगता है मैंने गलत पोर्शन ले लिया है, मुझे यही लेना चाहिए, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ओ, ठीक है। 65। अब देखिए, स्पेसर ये कांस्टेंट रहेगा पूरे पेज के लिए, 65। ठीक है? अब हम लोग वापस से आते हैं, लेट कंसिडर, मुझे दो पोर्शंस चाहिए, दो कंटेनर्स चाहिए मुझे। साथ ही साथ यहाँ टॉप पे मुझे, इस सेक्शन में शायद, ठीक है, यहाँ हेडिंग हो गया अपना, और क्या करें यहाँ पे, हेडिंग के बाद इधर लेट कंसिडर, यहाँ पे एक इमेज पुट करते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर प्लस हेडिंग। ठीक है? नहीं, गलत पुट कर दिया, अब करना था ड्रैग। हाँ, अब करेक्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्लिक किया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे लेट कंसिडर हम लोग पुट कर देते हैं
कॉपी, कंट्रोल V। यहाँ हेडिंग के लिए अभी हम लोग ले लेते हैं डिजाइन। ठीक है, जस्ट क्लिक। और यहाँ पे कंटेंट है, तो यहाँ पे अपना रिमूव होके कंटेंट। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आपका पिक्चर आता है, आप पिक्चर अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम पिक्चर ले लेते हैं। ट्राई करिएगा कैनवा, अगर आपको कैनवा यूज करना आता है, बिकॉज इजी है, उसका एक एप्लीकेशन भी है और वो भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। तो मानिए ये पिक्चर मेरी हो गई यहाँ पर। ठीक। आप चाहो तो इस पोर्शन में अगर लेकर आना है तो मीडियम, क्योंकि ये लेवल पे अपना आएगा। लोड क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, एक बार पब्लिश कर देते हैं इसको। होना तो चाहिए ये। नहीं, कैप्शन नहीं ऐड करना, लिंक भी नहीं देना पिक्चर की। फुल। मेरे एलिमेंटो में कोई ग्लिच आ गई है, वरना ये आपका ना इसके लेवल में आ जाता है, जितना आप देख रहे हो ना कंटेंट, ये उसके लेवल में मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है। ये आ नहीं रहा है, वरना ये प्रॉपरली आ जाता है। सी, ये जो आप ब्लैंक कितना देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, वियर्ड लगेगा। इसके लिए आपको ना ये यूज करना है। जैसे मैंने मीडियम यूज तो किया है, बट ये प्रॉपरली मतलब हो चेंज नहीं हो रहा है, बात ये है। तो मेरे एलिमेंटो में थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट, अगर आपको स्पेसर हम अगेन ऐड करेंगे विथ 65 के उसमें, क्योंकि मैंने 65 को कॉमन रखा है। तो 65 को हमने यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे मैंने किया 65। ठीक है। देन अगेन मैंने ग्रिड का यूज किया। ग्रिड में मुझे कितनी पिक्चर्स चाहिए? चलिए 3 पिक्चर्स का है। ग्रिड लिया। जब आप ग्रिड लेते हैं ना, तो हमेशा कंटेनर का यूज करिए। ठीक है, कंटेनर, क्योंकि कंटेनर आपके कंटेंट या फिर आपके वेबसाइट को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर आप सिर्फ ग्रिड का यूज करेंगे तो आप कभी भी किसी चीज में एड ऑन या फिर इंक्लूड नहीं कुछ कर पाओगे। बट लेकिन अगर आप ग्रिड यूज कर रहे हो और आपको कंटेनर भी फिर यूज करना है, इट्स मैंडेटरी। बिकॉज फिर जो आपका ये पोर्शंस है ना, आप कहीं पे भी किसी को भी इन सब में ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो लेट कंसिडर, अगर हम इसमें सर्च करते हैं आइकन, लेट कंसिडर आइकन बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, एक और आइकन बॉक्स हम लोग लेंगे। आइकन बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, देन अगेन आइकन बॉक्स। इन केस अगर आपको इनके आइकन्स नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप गूगल का फ्री पिक भी यूज कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, फ्री पिक। ये आपके ऊपर मतलब आप बोल सकते हो कॉपीराइट का कुछ भी क्लेम नहीं आएगा, ये गूगल की तरफ से आपको फ्री, या फिर शटर भी कर सकते हो। शटर, यहाँ पे आपको फ्री आइकन्स या फ्री इमेजेस मिल जाते हैं। ठीक है। तो लेट कंसिडर, अगर आप यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाते हो और आपको यहाँ पे चाहिए मेल, आप सर्च करो, या फिर मैसेज नहीं, लेटर।
एनवलप, मानिए एनवलप लिया, इंसर्ट किया, ये आपका यहाँ पे एनवलप, एनवलप हो गया। देन थर्ड एक और चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक का स्टार ही रहने देते हैं, एक को और चेंज कर लेते हैं, थ्री डिफरेंस में पुट कर देते हैं। अम मानिए ये, ठीक है, थ्री डिफरेंस आपके आ गए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे स्टार ऑलरेडी आपका गिवन है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, अगर आप हाफ स्टार है कैसा है, ठीक है, ये स्टार का। इसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका हेडिंग आ गया, लेट कंसिडर डिजाइन, ठीक है। हम्म, फिर आपका यहाँ पे और क्या था, डिजाइन के बाद हम आपको एक पूरा पेज बता रहे हैं जिससे कि आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, और इसी तरह से आपके सारे पेजेस क्या होंगे, बिल्डअप होंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सेकंड में आते हैं, यहाँ पे हम डेवलपमेंट पुट करते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाता है मार्केटिंग, ठीक है। इसके नीचे ही आपके कंटेंट भी सेम एज, आप क्लिक करोगे तो वन बाय वन आप क्या कर सकते हो, इसके कंटेंट्स को भी आप चेंज कर सकते हो। कॉपी, रिमूव, पेस्ट, अगेन सेकंड पे क्लिक करिए, इधर से आप कर लो। ये मैं हम उसी डमी का ही कर रहे हैं जो मेरा होम पेज पे था। कॉपी, इसके भी पीछे आप कलर्स पुट कर सकते हो, और वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे है, जैसे कि ग्रेडियंट का ही यूज करेंगे तो आप उसी का यूज करके यहाँ पे अपना कलर भी पुट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप जाओ, वापस से आप स्टाइल पे जाओ, कोई भी अपना एक कलर सेलेक्ट करो, और यहाँ पर आकर जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है, कैसा भी कलर चाहिए वो आपके ऊपर है। पिंक पूरा चाहिए या आपको पूरा येलो चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। अगेन प्लस पे जाएंगे, स्पेसर लेंगे, मानिए मुझे गूगल मैप ऐड ऑन करना है, ठीक है, तो गूगल मैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गूगल मैप को लेंगे, स्पेसर 65 का टारगेट, ठीक है। अगेन यहाँ पर आएंगे और हम लोग दो बॉक्सेस लेंगे, दो बॉक्सेस, क्यों, एक तरफ गूगल मैप आ जाएगा और एक तरफ आप एड्रेस एंड लोकेशंस पुट कर सकते हो, मतलब लेट कंसिडर यही हम लोग मान लेते हैं इस चीज के लिए। तो कंटेनर ग्रिड लिया है तो कंटेनर इज मैंडेटरी, तो दोनों बॉक्सेस में हम लोग कंटेनर डालेंगे जिससे फ्लेक्सिबल हो चीजें। देन अपने आप यहाँ पर आएगा आपका, एक जगह पे गूगल मैप आपको गिवन होगा, सी गूगल मैप, ये किया, पेस्ट। अब बात आता है लोकेशन कैसे पुट करनी है, तो हम प्रायुक्त को ही ले रहे हैं, सॉरी, प्रायुक्त, प्रायुक्त का लोकेशन कॉपी किया, देन वी विल रीडायरेक्ट टू लोकेशन। अब इसको करेंगे हम लोग क्या, रिमूव पूरा, ठीक, अपने लोकेशन को पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये जितना जूम करना है आप उतना जूम करके इस लोकेशन को बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक हुआ। दूसरी चीज, अम यहाँ पे क्या करने का पुट बोले थे, एड्रेस, एड्रेस कहाँ गिवन है, हाँ, ये, चलिए। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऐड टू कार्ट, ठीक है,
इंफॉर्मेशन नहीं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, नो इश्यूज। टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे हम लोग रिमूव। ठीक, अब हमारा ये पोर्शन आता है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगेन एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अभी तो हम कुछ भी पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, +91 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अपने हो गए 10 डिजिट्स के नंबर। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्लिकेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी क्लिकेबल नहीं है। इसको क्लिकेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम लोग अपने वापस से इस सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे इतने, यहाँ जो नंबर है आपका इसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे एक सिंटेक्स पुट करेंगे जिससे बोलते हैं टेल, TEL :, ठीक है, देन आपका नंबर +91 स्पेस 97852852364 ठीक है, देन या तो ब्लू पे क्लिक करिए अप्लाई पे, या फिर आप एंटर, सॉरी कहाँ चला गया नंबर, एक सेकेंड, +91 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, ये नंबर हो गया अपना। इसको किया, एक बार कॉपी भी कर लेते हैं, हाईलाइट, लिंक पे गए, टेल :, एंड पेस्ट और अप्लाई। ठीक है, ये देखिए ये आपका अप्लाई हो गया। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है उस पर्सन को। अब लेट कंसिडर यहाँ पे हमको कुछ और ऐड ऑन करना है इसके ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे कुछ इस तरीके से, कॉपी Ctrl+V। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम लोग पुट करते एक और चीज जिससे बोलते हैं, सॉरी, कॉन्टैक्ट अस, सी। ये समझ में आया आप लोग को? इतना बेसिक पूरा, ये जितने भी अभी हम लोग ने बनाया है बेसिक पेज का, किसी को कोई डाउट या कुछ भी ऐसे बीच में पूछना भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट करिश्मा, विशाल, जिशान, क्रिश, किसी को कोई डाउट या कुछ भी? मैम मुझे ना एक बार गूगल मैप्स वाला जो था ना, हाँ, वो वो रिपीट कर दे। मैप्स में ऐड हाँ किया था, वो एक बार हाँ, बताना ना प्लीज। बता दे, रुकिए, इसको छोड़ते हम फिर से फ्रेश से आपको बताते हैं। सी, हम लोगों ने सिंपली किया क्या है, इस जगह पे जो प्लस साइंस अपने को गिवन थे उसमें हाँ हम लोगों ने ग्रिड ले लिया। ठीक है, ग्रिड इसलिए लिया बिकॉज मुझे सिर्फ 2 स्पेसिफिक पोर्शंस चाहिए थे, तो मैंने 2 पोर्शंस लिए। ठीक, उसके बाद जब आप ग्रिड लेते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा, हाँ ग्रिड में अगर आपने एक चीजें ऐड कर दी, तो हम्म, अगर आपको दूसरी चीजें ऐड ऑन करनी होंगी ना, तो वो आपको प्रॉपर तरीका नहीं दिखाता। सी, प्रॉपर आपको नहीं दिखाता, एक स्पेसिफिक जगह पे आपको पॉइंट करने को हम्म, बोलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं फॉर सेफर साइड, कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हम लोग को ऐड ऑन करना हुआ, तो मैंने कंटेनर पुट किया। इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल मैप गिवन है, मेरा लैपटॉप, ये गूगल मैप, आप सिंपली ड्रैग करके इसको पहले ड्रॉप कर दो, यहाँ पे एक मैप आपका यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब बात आती है एड्रेस की, तो ये जो लोकेशन आपको गिवन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिलीट कर देंगे, और हम लोग अपना जो ये पोर्शन है, एड्रेस है, सॉरी पोर्शन कह रहे हैं, इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये उस जगह पे क्या करेगा, पॉइंट कर देगा आपको। ओके ठीक अंडरस्टूड। है, तो ये हुआ, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। देन ये वाला भी समझ में आया ना कि नंबर्स को क्लिकेबल कैसे बनाया जाता हाँ है, इसमें आपको टेल :, का यूज करना होता है। अब एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एंड करते हैं इसको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म से, तो अब ग्रिड नहीं लेते हैं हम लोग, सीधे कंटेनर ही ले लेते हैं।
चलिए, तो इसके लिए वैसे तो सिंगल में भी कर सकते, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले तो स्पेसर लेना है क्योंकि मैंने गलती की है। स्पेसर 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 65। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, सिंगल ही ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे डब्ल्यू पी फॉर्म, FORM फॉर्म। हाँ, ये आया आपका फॉर्म। अब देखिए, ये फॉर्म को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान कहाँ देना है, इस जगह पे देना है। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्म्स क्या है, बिल्डअप है। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने बनाया था, तो प्रायुग वाले को कंसिडर मत करिएगा। न्यूज़लेटर, साइन अप फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्म आपको गिवन रहते हैं। ठीक है, बट इन केस अगर आपको खुद का फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? बाय डिफॉल्ट वाले तो इजी है, बट अगर आपको खुद का बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसकी जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे न्यू फॉर्म का ऑप्शन है, हम लोग क्लिक करेंगे न्यू फॉर्म पे। बहुत ओवर तो नहीं हो रहा होगा ना, बिकॉज हम यहाँ पे एंड करने से आप अपने हर पेजेस में प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए। तो न्यू फॉर्म के लिए मेरा नेट का स्पीड ही स्लो है। एक सेकेंड, हॉटस्पॉट। ठीक है, ऑडिबल है ना आप लोग? हम ऐसा तो नहीं वॉइस ब्रेक हुई होगी? करिश्मा, क्रिश, No, जिशान। ma'am. नो मैम। It's fine. ठीक है, ग्रेट। चलिए, अब आते हैं न्यू फॉर्म पे ना। तो देखिए, न्यू फॉर्म के लिए अपने को करना क्या है ना, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपको यहाँ पे भी ना बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन है इस जगह पे। हम्म, कहाँ हैंग कर गया? सी, कहाँ गए फॉर्म वाला सेक्शन? हाँ, फॉर्म, न्यू फॉर्म। सो सॉरी, इसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने नेट भी चेंज किया, बट हाँ, सी, ये आपको बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे अगर आप क्या हो गया इसको?
हाँ, ये देखिए, ये नीचे कुछ आपको फॉर्म्स दिए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रेड बुक वाला, या फिर इस तरह से ना आपको कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्म्स बिल्डअप करके दिए गए हैं। बट अगर आपको सेल्फ बनाना है तो यहाँ पे आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्लैंक फॉर्म मिला है। सी, ब्लैंक फॉर्म एआई से भी जनरेट कर सकते, कोई इशू नहीं है, ब्लैंक भी आप बना सकते हो। तो क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करिए, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जस्ट लाइक एलिमेंटर। तो लेट कंसिडर फुल नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड मैसेज, ये हम लोग ले लेते हैं। तो मानिए नेम ड्रैग करके ड्रॉप किया, पहले सॉरी, ईमेल एड्रेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हो चुका है यहाँ पे ड्रॉप, एंड पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको उसमें कर लेते हैं। तो नेम को ड्रैग करके हम लोग ऊपर लेकर आते हैं, देन कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। अब ये एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, इट्स मैंडेटरी। तो ये आप कैसे पुट कर सकते हो हर पे, कि जैसे ये नंबर पे आप क्लिक करो, इसे नंबर पे नहीं है तो आप नंबर पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको रिक्वायर्ड का, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए आ गया, सेम एज पैराग्राफ टेक्स्ट। आप इस पे जाए, रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे डिलीट करके मैसेज, ठीक है, यहाँ पे डिलीट करके नंबर्स की जगह फोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, देन यहाँ पे फुल नेम, ठीक है। अगर आप इधर थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, हाँ ये पूरा आ गया। अभी आपका कुछ ऐसे भी है कि आपको मिडिल चाहिए या सिंपल चाहिए, कैसे चाहिए। अगर आप मिडिल पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए तो फर्स्ट एंड लास्ट। और अगर आपको सिर्फ सिंपल चाहिए, मतलब कुछ लोग को सरनेम नहीं पुट करना, तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है, सेव हो चुका है। अ, हम लोगों ने इसका नेम पुट नहीं किया है ना, एक सेकेंड, इस फॉर्म का नाम पुट कर देते हैं, सैंपल प्रायोग, ऐसे करके, ठीक है। अब सेव करते हैं इसको, क्योंकि वो ये वहां पे हाँ बोलिए। मैम मुझे इसमें एक डाउट था, जैसे अभी ये फोन नंबर आपने ऐड किया है, ठीक है, हाँ अगर हाँ कोई हमें कांटेक्ट करना चाहता है, हाँ। मल्टीपल कंट्रीज के, अगर हमें कोड्स डालने हो तो वो कैसे हम्म। हम ऐड कर सकते हैं इसमें? कोर्स मतलब जैसे मल्टीपल। +91, अच्छा, +3। वैसे एक सेकेंड रुकिएगा। अम, वो आपका जो आप +91 वाला कह रहे हो ना, वो आपका इसमें चला जाएगा। ये जो फोन नंबर है ना जिसमें आप कह रहे हो, वो इसमें चला जाएगा आपका, ओके। ये वाले में। तो ये वाला आपका प्रो वर्जन है, ये अच्छा। वाले में आपके तो इसमें ये, या फिर एक तो वो है, एक और भी अगर होगा तो आपका हो सकता है। नहीं, दो ही है आपके, ये वाले जैसे फैंसी फील्ड जो दिया है ना, जो +91 करके, ये वाला आपका इसमें चला जाएगा। और ठीक। इसमें आपको मैनुअली टाइप करना होगा, मतलब +91 फिर आपका नंबर, उस तरीके से। आप ऐसे कह रहे हो ना कि कंट्री के अकॉर्डिंग जो अपने कोड्स हाँ, होते कंट्री हैं। कोड के हाँ, अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली ड्रॉप exactly, तो डाउन में आए, हाँ, फिर हम तो वो सिलेक्ट आपका करते इसमें आ जाएगा, इस वाले में नहीं आएगा, आपके दूसरे वाले में आएगा। कहाँ गया, ऐड फील्ड्स में जाके, एक सेकेंड, ये हैं। वाले में आएगा आपका। ठीक है। इस वाले में आपको सेल्फ टाइप करना पड़ेगा, +91 वैसे करके। हम्म। तो इसको सेव करके क्लोज करते हैं और अपने उस सेक्शन में आते हैं, क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, और अपना वो सैंपल वाला ऑप्शन अपने को यहाँ मिलेगा, इसके नीचे सैंपल प्रयोग करके। तो वो आपका यहाँ पर आ गया। तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो इसका भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो अब इसमें मानिए अगर हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं ऊपर इंक्वायरी फॉर्म, तो यहाँ हेडिंग हम लोग पुट कर देंगे। कंटेनर का ये यूज हो पाता है कि आप उसको, विदाउट कंटेनर आपको प्रॉब्लम करेगा। तो क्वेरी फॉर्म, ठीक है, ये आपका इंक्वायरी फॉर्म हो गया। अब लेट कंसिडर इन अ वर्ड सिनेरियो, एक और चीज हम आपको बता देते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों कंटेंट के बीच में क्या करना है, एक और पोर्शन ऐड करना है, ठीक है। मुझे इसके और इसके बीच में एक पोर्शन ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन है ना,
यहाँ भी, क्योंकि इसके ऊपर करना है हमको, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, वापस से प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन लेट कंसिडर, मुझे इसमें 3 सेक्शंस नहीं है। क्या करे क्या करे क्या करे, ग्रिड्स में है। थ्री सेक्शन तो इसमें भी नहीं है, चलिए 6 वाला ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मानिए मुझे सिर्फ यहाँ पे एक वैसा सेक्शन कंटेनर, ठीक है, और हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कंटेनर, देन अगेन कंटेनर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग को यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसमें इमेज, 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 ये हम आपको सैंपल में बता रहे हैं कि कभी भी आपको लगे तो वो पोर्शन बस कंप्लीट करके आपको बता रहे हैं। तो लेट कंसिडर, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आर ट्रेनर्स करके, और यहाँ पे एक एक इमेजेस पुट कर देते हैं ट्रेनर्स की। यहाँ पे क्लिक किया, चूज इमेज पे गए, स्क्रॉल किया, तो लेट कंसिडर ये फर्स्ट इमेज, ठीक है। देन सेकंड पे गए, चूज इमेज, सेकंड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपका जस्ट एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज आप लोग। ये और ये, एंड सेलेक्ट, ठीक है। ये पोर्शन आपका, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये जो लास्ट के 6 है ना, अगर नहीं भी फिल है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको पब्लिश करोगे और रीडायरेक्ट करते हो अपने पेज पे, पेज कहाँ गया अपना, हम्म, सी, आपका पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ में आया ना कि अगर आपको कुछ बीच में भी ऐड ऑन करना है तो आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, कोई इशू तो नहीं ना। बाकी तो प्रैक्टिस करने पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मतलब ये तो सिर्फ हमने अपना आपको बताया है, बट हाँ एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको। तो इतने में कोई डाउट तो आप लोग बताओ। और ऐसे ही आपके सारे पेजेस बिल्डअप होंगे, सारे के सारे पेजेस बिल्डअप होंगे। करिश्मा, जिशान, अ, हाँ हाँ, बोलिए। मुझे एक था कि हाँ हाँ बोलिए। अगर हमें ऐड करना है, मतलब जैसे हाँ, कोई हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें फ्लेक्स बॉक्स यूज करना चाहिए या ग्रिड यूज करना चाहिए? अगर आप ग्रिड यूज करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ग्रिड का भी यूज दिखाया था इस वाले हाँ। सेक्शन में, अगर आपको लगता है ग्रिड यूज करना है तो आप कर सकते हो, बट उसमें कंटेनर जरूर ले लीजिएगा। ओके, ठीक है। कंटेनर से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर आपको ग्रिड यूज नहीं करना, अगर आप फ्लेक्स यूज करते हैं, तो हम्म। फ्लेक्स में ऑलरेडी कंटेनर टेकन रहता है, आपको दोबारा से कंटेनर की रिक्वायरमेंट पुट करने की नहीं होती है। ओके, ठीक है। हाँ, ये दोनों में डिफरेंस है बस। ठीक है, तो आज का सेशन अच्छा ज्यादा ही ले लिया हम, चलिए कोई कोई बात नहीं, लेकिन होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आप लोग को आया होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए मतलब इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और कोई डाउट आए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको और वो कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। Ma'am, you, हाँ ma'am, हाँ विशाल ma'am, you बोलिए। tell, you tell about content. So I have a question about this content. हम्म। Ma'am, can I हाँ हाँ, ask यू you कैन, about, यू, यस 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 यस। ma'am? Previously, I write some content and for my website. Would you like to check this? How this is this perfect for this my website or radio website? Yes, I can. You Then can you please share your link either on WhatsApp group or here also. which WhatsApp group? Uh, Ma'am, please give me the there knock there's this one group. Then WhatsApp group now. One second.
DM by Shivangini BT0725. This is our WhatsApp group. In case, in worst scenario, Vishal, if someone 076. didn't, BT0725DM66. Ma'am, please add me this WhatsApp group. I Uh, don't Actually, hear. I won't able to add. You can contact to Sachin. You get a call from one person, Sachin, Oh yeah, ma'am. in the beginning of the class. Ma'am, I have to share you the link of my Added website. Vishal added. I have added Add. in the group. Okay, Ma'am, you already added in that group, Vishal. oh, I already added this group. Yes, yes, yes. You already. Sachin was saying that you already added. He already added you in that group. Oh, this is the group. Yeah. Only See. admin can only admin can see this group. Uh, Searching. Ma'am, is this group? I sent my link. I didn't get Vishal. Ma'am, See, Sachin is typing in that. Okay, here you send us the link, yeah? again. Okay, 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 okay. Okay. This is my website, and uh, tell me about this website. How is it? How it work it and For sure, others just things. give me 2 days time. On Friday, there would be our class now. So I'll surely tell you about your website. I'll just give you the overview about or the review about from my side to your website. Okay, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. I'll bookmark it now. So it would be easy for me to remember. ओके सो ठीक है फिर हम लोग अपनी क्लास को डी एंड करते हैं इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो अभी भी कोई इश्यू नहीं है और अदरवाइज फिर हम लोग फिर फ्राइडे को मिलते हैं हाँ करिश्मा विशाल तो है क्रिश No doubts, ma'am. Thank you so ओके much. ओके No चलिए फिर doubts, हम ma'am. लोग ओके ग्रेट चलिए फिर मिलते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो फ्राइडे को ठीक है हम लोग पहले उसको Ma'am, रिजॉल्व करेंगे I have a one question also. हाँ हाँ बोलिए विशाल प्लीज Ma'am, ma'am, tell me the importance for my SEO of this class. How Huh, can we I? will start. Yes, yes, Vishal. We also start SEO on Monday, upcoming Monday. Na, we will start the SEO. So just complete this WordPress, and I'll surely tell you about the SEO and the use of SEO and the benefits of the SEO. Yeah, ma'am. Okay. Okay. Thank Then you, great. हाँ. Okay. चलिए. Bye bye. Take care, everyone. Bye, Vishal. Bye, Karishma. Bye, Bye. Krish. Bye, ma'am. ma'am. Okay. Thank you. Welcome.